Alright, good morning. Welcome back. We have completed compound epithelium in the last class, right? I told you that we will be talking about glandular epithelium in this particular section, right? So let's get started with glandular epithelium. अब glandular epithelium start करने से पहले we will have to understand a few less important topics, है ना? जिसपे examination में बहुत ज़्यादा questions नहीं आते, but still since it is the part of the syllabus, we will have to do it. Cool? All right. So in the last class we completed compound epithelium with respect to four or five different types. We started up with stratified squamous epithelium. उसमें दो कैटेगरी पढ़े थे हमने, stratified squamous keratinized and stratified squamous non-keratinized, right? So आज उसके बाद हमने पढ़ा था stratified cuboidal, जिसमें the basal layer is made up of columnar cells and the superficial layer is made up of cuboidal cells, right? Then we spoke about stratified columnar. columnar में कैसा condition बेटा? Basal layer is also columnar and superficial layer is also columnar. ठीक है बेटा? तो now what are we trying to do? अगर आपको ये सारे इसके exams, इसके locations याद रखने में दिक्कत जा रही है, so I told you we will do a simple exercise. अब वो exercise क्या है? पहले तो आपको इतना section पढ़ना पड़ेगा, right? इतना section पढ़ के you will have to at least memorize करना तो पड़ेगा, otherwise there is no particular option. What I am giving you a strategy to avoid confusion. Cool? अब confusion कैसे create कम करेंगे हम? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शांति से बैठना है और you have to start with one corner of your body and go to the other corner of the body और जहां पे आपने major location याद किए हैं वो हम लोग याद अभी वो हमको सिर्फ memorize करना है डॉक्टर. Cool? So let's start with something called as head. अब head में हमने बात किया था, head में हमारे पास scalp है ना? और scalp में कौन सा type of epithelium? Stratified squamous keratinized. Cool? तो जैसे scalp हो गया, अभी और नीचे आओ बेटा, नीचे आते हो तो आपको आंखें आती है. Eyes में there are several type of epithelium which we started up, right? आंखों के आगे से लेकर पीछे जाएंगे हम. So आंखों का cornea is stratified squamous non-keratinized. Is that right? आंखों का conjunctiva, correct? Conjunctiva is stratified cuboidal. Cool? उसके बाद आता है then you have आंखों का lens, which is simple cuboidal. You have iris, you have choroid, which is simple cuboidal. So आंखों में इतना conditions हो गए, right? आंख हो गया, then again come down. Nose आता है, nose में initial part of the nose stratified squamous non-keratinized, right? फिर nose की एक section में pseudo stratified epithelium भी आता है बेटा, ठीक है? वैसे ही आप और नीचे जाओगे तो आपको माउथ आ रहा है, माउथ में बकल कैविटी में stratified squamous non-keratinized, टंग में stratified squamous non-keratinized, and उसके बाद larynx, pharynx, vocal cords stratified squamous non-keratinized. Cool? और जैसे आप ईयर के पास जाते हो, है ना? हेड रीजन में ईयर भी आएगा, ईयर में भी अगेन यू विल हैव tympanic cavity में ciliated columnar है बेटा, ठीक है? eustachian tube में भी एक टाइप का columnar epithelium है. So again as you come down you have trachea में ciliated columnar है, trachea में pseudo stratified epithelium भी है, ठीक है? वैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको lungs आता है, lungs में you have simple, you have alveoli which is simple squamous epithelium, correct? और lungs की पूरी cavity, that is pleural cavity, simple squamous epithelium, correct? Pericardial cavity, heart के around की cavity, simple squamous epithelium, correct? heart के अंदर blood vessels के अंदर endothelium कौन सा है? simple squamous. Cool? और नीचे आओगे तो आपको abdomen आता है, abdomen में कौन से region आ गया बेटा? abdominal cavity again उसकी पूरी peritoneum simple squamous epithelium, करेक्ट? अब एब्डोमेन में
we also had one part called as esophagus. Esophagus में कौन सा epithelium? Stratified, squamous, non-keratinized. जैसे आप esophagus से नीचे आते हो stomach, stomach में कौन सा? पूरा alimentary canal till anal region कौन सा है? Simple columnar epithelium. Cool? So वैसे ही तो throughout the entire digestive system you have simple columnar epithelium. Some part of the जैसे आप anal region पे जाओगे, some part of the anal region stratified squamous epithelium. Cool? वैसे ही आप thyroid follicle के पास आते हो, thyroid follicle में कौन सा है? Simple cuboidal epithelium. Cool? और नीचे जाओगे abdominal cavity से और नीचे जाओगे बेटा, है ना? abdominal cavity के बाहर एक organ है which is called as kidney. Kidney में nephron है. Nephron में we spoke about Bowman's capsule, simple squamous epithelium. Then we spoke about the neck of the Bowman's capsule, ciliated cuboidal epithelium. Then we spoke about PECET, simple cuboidal but more brush border. Then we spoke about LOH, that is loop of Henle. Loop of Henle में thick segment, simple cuboidal, no brush border. Thin segment में simple squamous. DCT में simple cuboidal but less microvilli, that is less brush border. So nephron kidney हो गया. Kidney के ऊपर वाले kidney की capsule, that is renal capsule also has this type of epithelium. कौन सा? Simple squamous epithelium. वैसे किडनी हो गया, करेक्ट. किडनी से और नीचे जाओगे तो आपके पेल्विक कैविटी लाइन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए. टेस्टिस में जर्माइनल एपिथेलियम, ओवरी में जर्माइनल एपिथेलियम. Germinal epithelium is a type of simple cuboidal epithelium. Cool. Then we also spoke about rated testis. कुछ section of rated testis and rated testis will have which type of epithelium beta? It will have simple squamous epithelium. Cool. Then we have fallopian tubes. Female में fallopian tubes जहाँ पे हमको ciliated columnar epithelium मिलेंगे बेटा. ठीक है? यूट्रस में ciliated columnar epithelium होंगे, राइट. cervical region में कौन सा epithelium? Simple squamous epithelium होंगे बेटा. ठीक है. vaginal tract में simple squamous epithelium. male urethra, my mistake. cervical इसमें it is stratified squamous epithelium, non-keratinized. vaginal tract में stratified squamous, non-keratinized. cool. उसके बाद और कुछ पार्ट अभी लिविंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में. हाँ, मेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा. मेल यूरेथ्रा में कौन सा एपिथेलियम? सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. वेयरएज फीमेल यूरेथ्रा में कौन सा एपिथेलियम? स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस, नॉन केराटिनाइज्ड. ठीक है बेटा. तो इतना हमको सेक्शन ये शांति से बैठकर आपको ऊपर से नीचे सारे लोकेशंस को याद करने. अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू. महीने में एक बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है, सो इट विल बी कंपैरेटिवली बेटर एंड अंडरस्टैंडेबल, सो यू कैन अवॉइड कंफ्यूजन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. कूल. चलो, let's get started with certain special type of epithelium. देखो, अब हम बात करेंगे special type of epithelium. जैसे ही हमने epithelium के बारे में बात किया था, epithelium का मतलब क्या बेटा? It is lining tissue, ऐसा tissue जो outline बनाता है या inner lining बनाता है. Cool. So the next section which we will be talking about is specialized epithelium. Correct? कुछ जगह पे the epithelium cells they modify. Correct? So modification में specialized epithelium में we will first talk about pigmented epithelium. Pigmented epithelium. Correct? Now here when you talk about the pigment, correct? ऐसा epithelium which will have pigment granules in them. Cool? So pigmented epithelium में क्या होंगे बेटा? There will be pigment granules. Now here the pigment is majorly your body का color pigment which is melanin. ठीक है? So pigment granules present होंगे which is generally your melanin. Cool बेटा? अब pigmented epithelium का example क्या होगा आपका? Cells of the choroid.
ठीक है, सेल्स ऑफ द कोरॉइड, सेल्स ऑफ द आइरिस। अब कोरॉइड क्या है, आपको यही चीज याद रखनी है। सो इफ यू टेक अप अ रफ डायग्राम ऑफ आईज, ह्यूमन आई, तो आपको ये कॉर्निया मिलता है, इसके ऊपर पूरे इसके ऊपर कंजक्टिवा होगा, दिस इज कॉर्निया, देन यू हैव दिस इज लेंस, ठीक है, ये आपकी आइरिस होगी यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर आइरिस, दिस इज योर सस्पेंसरी लिगामेंट, करेक्ट। और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई, दैट इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ द आई हैज 3 लेयर्स, करेक्ट। द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्क्लीरा, उसके बाद एक और लेयर है जिसको बोलते हैं कोरॉइड, उसके बाद एक और लेयर जिसको बोलते हैं रेटिना, राइट। सो दिस इज स्क्लीरा, दिस इज कोरॉइड and this is retina, ठीक है बेटा। अब रेटिना इज दी नर्वस लेयर, मतलब टेक्निकली लाइट के इंपल्सेस कौन कैरी कर रहा है, इट इज कैरीड बाय दी सेल्स प्रेजेंट इन दी रेटिना, इट इज कंप्लीटली नर्वस लेयर, राइट। अब कोरॉइड क्या है, इट इज वैस्कुलर लेयर, कोरॉइड का मतलब ही वैस्कुलर है, राइट। सो रिच ब्लड सप्लाई होगा एंड बिटवीन कोरॉइड एंड रेटिना देयर विल बी सर्टेन क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। अब ये क्यूबॉइडल सेल्स जो है, दे विल हैव सर्टेन पिगमेंट ग्रैन्यूल्स एंड दोस पिगमेंट ग्रैन्यूल्स आर योर मेलानिन, ठीक है। कंप्लीट कोरॉइड अपीयर्स ब्लूइश इन कलर, देखो ब्लड सप्लाई है उसमें, बट अगर मैं आंखों का स्ट्रक्चर देखूं, अगर मैं कट करके देखूं, तो कोरॉइड अपीयर्स टू बी अ लिटिल ब्लूइश इन कलर, डार्क ब्लूइश इन कलर। अब ब्लूइश क्यों दिखता है, बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन, कूल। सो मेलानिन के प्रेजेंस के वजह से कोरॉइड ब्लू अपीयरेंस में दिखता है। अब कोरॉइड के अंदर मेलानिन का क्या काम, करेक्ट, व्हाट इज द मेजर रोल, आंखों के अंदर मेलानिन का क्या रोल। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर केस हियर, मेलानिन serves as light absorber, cool। for example अगर आप बचपन में सब ने किया है ना, मैंने भी किया दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वी वर ट्राइंग टू, हम आसमान को देखते थे सो दैट वी कुड एक्चुअली सी द सन, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी द सन। क्यों, कांस्टेंटली अगर आप सन को देखोगे तो अपने आप आंख बंद हो जाएगी, राइट, बिकॉज़ योर सन emits huge amount of light and your eyes is not used to such large amount of light, correct। so extra amount of light के वजह से आपकी आंखें डैमेज हो सकती है ना। आपने ये भी सुना होगा कि सोलर इक्लिप्स वगैरह हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देखते, we should be wearing glasses, that is because it will damage the walls of your eye, cool। so extra amount of light अगर आपके आंख में जाता है, so that might damage the eye leading to blindness, right। but हम सूरज को देखते हैं फिर भी हमारी आंख we don't become blind because that extra, your eyes have an adaptation, right। so the extra amount of light is being absorbed by melanin। ये तो चीजें मेरे को पता है कि black absorbs maximum light, ये तो हमको पता है, करेक्ट, black absorbs maximum light। so अगर मैं इसकी बात करता हूँ सोलर कुकर में, यहाँ पे that is why we paint black, right। so melanin क्या करता है यहाँ पे, it will absorb extra amount of light, cool। so वो extra amount of light absorb करेगा and जितना required है उतना ब्रेन को जाएगा with respect to forming impulses, cool। so कोरॉइड का फंक्शन, यहाँ पे मेलानिन का फंक्शन, पिगमेंटेड एपिथेलियम का फंक्शन is protection of eye by absorbing extra amount of light, ठीक है। आपने ये नोटिस किया होगा, this particular condition is absent in it is absent in other animals like dogs and cats। आपने देखा रहेगा ना कि डॉग, कुत्तों को अगर आप आंखों पर टॉर्च मारते हो तो उनकी आंखें बटन के जैसे चमकती हैं, राइट। सो व्हाट आर दे ट्राइंग, वो बटन के जैसे चमकते हैं, ऑटोमेटिकली इट कम्स बैक टू नॉर्मल। यू रियली कांट क्लिक अ फोटोग्राफ विद अ डॉग एट नाइट व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज लेस। अचानक से आपने फ्लैश मारा तो भग करके आपने बहुत सारा लाइट दे दिया, राइट। But dogs have a reflective layer. Dogs and cats, they have a reflective layer. This is a absorbing layer. Cool. So like extra amount of light is absorbed, whereas dogs and cats में extra amount of light is reflected back. इसलिए उनकी आंखें बटन के जैसे ऐसे स्टार के जैसे चमकती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर आप उनको एक्स्ट्रा लाइट दोगे तो वापस आपको दे देंगे ये ले, right। so in dogs and cats that is absent। so here choroid का मतलब आपको यही याद करना है with respect to pigmented epithelium।
अब इसके अलावा पिगमेंटेड एपिथेलियम इज आल्सो seen on your skin, right? Pigmented epithelium is also seen on your skin, जिसके ऊपर जिसके अंदर there are certain cells which are called as melanocytes जो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके जो स्किन सेल्स, आपकी जो कलर है that is due to melanin, right? अगर मेलानिन का अमाउंट कम होगा so you will get a lighter shade, मेलानिन बहुत ज्यादा होगा so you will get a darker shade, right? So in that particular context melanin आपको extra amount of UV ये सब चीजों से प्रोटेक्ट करता है, right? So इसीलिए हम बोलते हैं कि जो extremely fair होते हैं they are at a high risk of getting skin cancer, right? Skin cancer की levels are very less in the regions of Africa because वहाँ पे people are dark, they have large amount of melanin genetically, right? But when you talk about people suffering from albinism, आपने वो देखा रहेगा, it's a disease where the complete individual has no melanin, मतलब उसकी बालों में भी melanin नहीं होगा, एकदम ब्रिटिश लोगों में जैसे ब्लॉन्ड कलर के बाल होंगे, eyebrows will be also white, eyebrows white होंगे, eyelashes white होंगे, so top to bottom everything is absolutely white, छिला हुआ अंडा। तो बोलने का मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको, gratitude for such people, but then lecture का मूड मेंटेन करने के लिए कुछ भी बकवास कर सकते हैं, right? So come back on that particular point कि complete उनको मेलानिन होती ही नहीं है, so they are at a very high risk of getting skin cancer. Cool बेटा? So that is all with respect to pigmented epithelium. The next type of epithelium which we will be talking about is something called as neurosensory epithelium. Neurosensory epithelium. Neurosensory epithelium, those epithelium which have modified themselves to serve as receptors. Modified epithelium which serves as receptor. अब receptor वो type के cells हैं, they are specialized cells which receive nerve supply. Now when you talk about your skin, not each and every part of your body or not each and every cell of your skin receives nerve supply, but when you talk about receptor, हर एक cell को एक nerve supply होगा such that they will be able to carry the stimulus and that stimulus generates something called as action potential. अब action potential जो है को अगर मैं सिंपल नॉर्मल लेमैन्स टर्म में बोलूं तो एक्शन पोटेंशियल इज द सोफिस्टिकेटेड टर्म फॉर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। कूल। अब ये एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है, क्या कैसे होता है, एवरीथिंग हमको इस सिलेबस में we also have to understand कि how is brain producing electricity, how is brain producing electrical impulses. Is that very clear? So pigmented epithelium, my mistake, neurosensory epithelium are those which are serving as receptor organs. तो इसके examples क्या होंगे बेटा? इसके examples होंगे hair cells of organ of corti. Hair cells of organ of corti. Organ of corti जो है, it is a sensory epithelium of inner ear. Sensory epithelium of inner ear. So organ of corti वो epithelium है जो हमने इसमें लिखा था स्टीरियोसिलिया, राइट? मैंने आपको ये चीज बताया था कि ये जो हेयर सेल्स हैं उनके cilia will move according to the medium in which they are embedded. Correct? So hair cells of organ of corti. और एक एग्जांपल ले लेंगे हम hair cells of Schneiderian membrane. Hair cells of Schneiderian membrane. Schneiderian membrane क्या है? इसी को हम बोलते हैं बेटा olfactory mucosa. Olfactory mucosa. Olfactory mucosa में pseudo stratified epithelium होते हैं, correct? So olfactory मतलब associated with smell.
those hair cells which are able to take up chemical stimulus. They are able to carry they get stimulated by certain chemicals, and those chemicals which we talk about are gases. Is that very clear? So olfactory mucosa में है. Similarly टंग के गस्टैटोरिसेप्टर्स, ठीक है, तो टंग के गस्टैटोरिसेप्टर्स are taste receptors. Gustatoreceptors of tongue. ठीक है बेटा? So that is all with respect to neurosensory epithelium. Very quickly, please try to copy this down. है ना? Then a small section which we have to do is something called as cell junction. ये आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सेल जंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ठीक है? तुरंत इतनी चीजों को कॉपी कर लो बेटा. Okay. Let's get started with the next topic. That is cell junction. दूसरा टॉपिक है, पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, अगेन मैं बता रहा हूं, सेल जंक्शंस. ठीक है? थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सिलेबस का पार्ट है तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है? सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी टॉक अबाउट इज समथिंग कॉल्ड एज सेल जंक्शंस. ठीक है? नाउ व्हाट आर सेल जंक्शंस? बेसिकली इट इज सेल टू सेल कनेक्शंस. Cell to cell connections, right? So we spoke on this particular context that epithelial cells जो है या फिर epithelial tissue जो है, epithelial tissue it basically forms the entire lining, correct? So बहुत ज़्यादा important है कि every epithelial cells they get connected to each other. हर एक सेल को दूसरे सेल के साथ चिपकना पड़ेगा, right? जैसे अगर मैं कोई एक wall construct कर रहा हूँ, so I will use bricks, right? और एक ब्रिक दूसरे ब्रिक के साथ चिपके, इसलिए मैं क्या यूज करता हूँ? सीमेंट. So that every particular brick, each brick is resembling a cell, correct? And every particular brick has to be connected to another brick, correct? Every cell has to be connected with another cell. But when you talk about connective tissue में ऐसा कंडीशन नहीं होता. Connective tissue में एक extra cellular matrix होती है, correct? An extra cellular ground substance. Ground substance का मतलब क्लियर इंडिकेशन है सेल. फॉर योर एग्जांपल अगर आप सेल कंसीडर करोगे, साइटोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज द मैट्रिक्स, ये एक फ्लोर है. एक सेल को 3 डायमेंशनल स्फीयर कंसीडर कर लो, ठीक है? वो स्फीयर के अंदर फ्लूइड है ना? आपने बचपन में मेले में वो एक बॉल मिलता था, वो बॉल कैसे मारोगे तो उसके अंदर लाइट, मतलब फ्लूइड और लिक्विड होती थी, ऐसे मारोगे तो उसके अंदर लाइट चमक के आती थी. सो एग्जैक्टली दैट इज रिजेंबलिंग योर सेल. So it's a 3-dimensional structure which has cytoplasm within, right? And all your organelles of the cell are floating in that particular medium. Cool. So अगर वो float कर रहे हैं, so that cytoplasm becomes your matrix. Similarly, connective tissue में भी ऐसा ही है बेटा कि connective tissue में cells एक दूसरे के साथ बहुत strongly connected नहीं है. But अगर मैं muscles की बात करूं, muscles में they are strongly connected. Correct? Every muscle cell is connected to another muscle cell. क्योंकि अगर एक muscle cell contract होगा तो उसके साथ चिपका हुआ दूसरा भी contract होना चाहिए. तो muscle cells के बीच में cell junction है. So not all the tissues of your body will show cell junction. Cell junction is a characteristic feature of epithelial tissue majorly, because epithelial tissue बिना cell junction के काम ही नहीं कर पाएंगे. Correct?
बिना सेल जंक्शन के वो चिपकेंगे ही नहीं, they will not be attached to each other, and if they are not attaching to each other, the sole purpose of serving as a lining tissue is absolutely not fulfilled. Correct? So since you have to make a nice sheet of that particular cells, आपको सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड वो कनेक्ट करने वाले जो apparatus है, राइट, स्पेशलाइज्ड सेल्युलर एंड नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर्स जो है, दैट इज कॉल्ड एज सेल जंक्शंस. कूल. अब सेल जंक्शन जो है बेटा, हम इसको तीन मेजर कैटेगरी में पढ़ेंगे. एक और हम सेल जंक्शन भी पढ़ेंगे, दैट इज सेल एसोसिएशन. कूल. सो तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अधेरिंग जंक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? अधेरिंग जंक्शन. दूसरे को हम बोलते हैं टाइट जंक्शन. तीसरे को हम बोलते हैं गैप जंक्शंस. ठीक है? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच पर्टिकुलर जंक्शन विद अ टाइप ऑफ डायग्राम. इधर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स. फुल. ऑलराइट. सो अधेरिंग जंक्शन, पहले अधेरिंग जंक्शन पढ़ लेते हैं. करेक्ट? अधेरिंग जंक्शन को दूसरा नाम है जोन्यूला अधेरेंस. जोन्यूला अधेरेंस. जोन्यूला छोटा वर्जन ऑफ जोन. जोन बड़ा वर्ड है ना? जैसे we are at now we will be turning into Amravati is going to turn into a red zone. तो एक जोन है, उसमें छोटे-छोटे zonules हैं, राइट? सो जोन्यूला अधेरेंस नाम से समझ में आ रहा है. अधेरिंग का मतलब क्या? इट्स एन इंग्लिश टर्म व्हिच मींस स्टिकिंग, है ना? हम बोलते हैं adhere to the rules, adhere to the rules and regulations of lockdown, है ना? जो लोग तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो फॉलो दैट पर्टिकुलर. एनीवेज, बकवास बातें नहीं करते हम अभी, है ना? दुनियादारी की बातें हम अभी यहाँ पे नहीं करते. लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अब बीच में जब मैं कुछ डायग्राम वगैरह बनाऊंगा तब मैं आपको एक फ्री का ज्ञान वापस दूंगा. करेक्ट? सो ये ऐसा होना चाहिए. एवरी पर्टिकुलर लेक्चर शुड नॉट हैव ओनली एंड ओनली लेक्चर, राइट? ये एडवांटेज होता है इन अ फुल फ्लेज्ड क्लास, राइट? सो हम थोड़ी सी इधर-उधर की बातें करते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, है ना? वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है. यू टॉक अबाउट समथिंग एल्स एंड देन यू ड्रैग दैट टॉपिक इनटू योर सिलेबस. कम बैक. अधेरिंग का मतलब क्या बेटा? स्टिकिंग. करेक्ट? जोन्यूला अधेरेंस बोलते हैं. इसी को बोलेंगे बेटा सीमेंटिंग जंक्शन. सीमेंटिंग जंक्शंस. ठीक है? अब इसमें यू हैव थ्री मेजर टाइप्स. बाकी लोगों में टाइप नहीं है, बहुत ही सिंपल वाले. ठीक है? इसमें यू हैव थ्री मेजर टाइप्स. ठीक है? Adhering junctions with the help of certain proteins called cadherin. Due to cadherins, due to desmosomes, and due to hemidesmosomes. पहली बार पढ़ रहे हो, please make sure that you understand this topic. Cool? Okay. अब कैथेरिन्स क्या है? कैथेरिन देखो नाम बता रहा है. अधेरिन मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो दोनों को जोड़ के रखेगा. सेल को जोड़ने वाला. C for cell. अधेरिन मतलब जोड़ने वाला. Right? So cadherin is that protein which will join the special type of cell. So on an average, अगर मैं एक सेल को कंसीडर करूँ, I am giving you a rough diagram on that particular context. एक सेल है बेटा इधर, ये दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है, ये तीसरे सेल के साथ कनेक्टेड है. ठीक है? इन दोनों के बीच में there will be suture, टाके. ठीक है? ये जो सूचर टाइप के apparatus अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आप देखो तो ये प्रोटीन से बने हुए हैं. There
अब बात करते हैं डेस्मोसोम्स। देखो बेटा, जोम्स का मतलब है ऑर्गेनल्स, करेक्ट? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। सो जोम कम्स फ्रॉम द वर्ड यूनिट या ऑर्गेनल। डेस्मो का मतलब क्या है? कनेक्शन। डेस्मो connection, एक structure. I am just giving you an example how to remember this. Cool? No. हाँ, plants में there is a structure called as plasmodesmata. Correct? अब plasmodesmata क्या है? थोड़ी सी प्लांट के पास प्लांट बायोलॉजी में जाते हैं, ठीक है? आप मानते हो कि प्लांट को सेल वॉल है, एंड सेल वॉल के अंदर there is a cell membrane, ठीक है? और सेल दूसरे सेल के साथ वो अटैच्ड होंगे। कुल सो ये सेल की न्यूट्रिएंट्स इस सेल में कैसे जाएंगी? मतलब टेक्निकली एवरी पर्टिकुलर सेल इज केज्ड, है ना? बोल सकते हो ना कि केज का मतलब क्या है? बिकॉज़ ऑफ योर सेल वॉल इट इज गेटिंग पार्टीशनड, इट इज गेटिंग प्रोटेक्टेड, करेक्ट? एंड रिजिडिटी मिल रही है, राइट? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट cell membrane, it is selectively permeable, whereas the cell wall is completely permeable. So मतलब वही है, सेल्यूलोज से बना हुआ है, but it is rigid. तो एक सेल दूसरे सेल्स के थ्रू कनेक्ट कैसे करेगा? There are certain channels, और ये चैनल्स को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाली जो टनल है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो डेस्मा हियर रेफर्स टू कनेक्शन, सो डेस्मोसोम इज आल्सो एसोसिएटेड विद कनेक्शंस। कूल, ठीक है बेटा? अब डेस्मोसोम्स बेसिकली अपैरेटस कैसे दिखेंगे वो भी हम बनाते हैं, ठीक है? डायग्राम बना लेंगे, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा है, एक सेल है, दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल, ठीक है? सिमिलरली ये डेस्मोसोम्स में एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल, ये चारों कॉर्नर में होंगे। इफ इट इज फॉर्मिंग अ शीट इट विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट। ये 2 डायमेंशनल व्यू देख रहे हो, बट व्हेन यू टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल व्यू आप इसको थ्रू आउट द सेल अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? सो देयर आर सर्टेन प्लाक प्रोटीन, प्लाक, ठीक है? दोनों तरफ से प्लाक प्रोटीन्स होंगे सीमेंट के जैसे, ठीक है बेटा? आई एम जस्ट कनेक्टिंग दीस टू सेल्स, बट ऊपर भी अगर कोई सेल रहेगा तो ऊपर भी ऐसे प्लाक प्रोटीन्स होंगे। एंड फ्रॉम दीस प्लाक प्रोटीन्स देयर आर सर्टेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच कम। ये ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं? These structures which you can see are desmosomes, ठीक है बेटा? तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, this hair like structure is again made up of a special type of protein called as keratin. We spoke about keratin, correct? अब ये क्या करेंगे बेटा? केराटिन जो है, केराटिन की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, they will attach, they will cling, है ना? बंदर की पूंछ के जैसे, they will cling to the cytoskeleton of the cell. ठीक है? अब साइटोस्केलेटन क्या है? आप ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ोगे। एक सेल, every particular cell has its own structure, right? Some cells are cuboidal, some cells are columnar, some cells are flat structures, some cells are globular. So every particular cell has its own structure. Now this structure is maintained by cytoskeleton. ठीक है? Skeleton of the body. हमारी हाथ ऐसे स्ट्रक्चर में क्यों है? हमारे फिंगर्स ऐसे क्यों है? Because we have bones. हमारी skeleton उस स्ट्रक्चर की। So similarly, if you have a circular cell or if you have a globular cell, इस सेल के अंदर certain protein, tubulin protein, microtubule ऐसे कुछ प्रोटीन्स होंगे जो उस सेल उस स्ट्रक्चर में है, right? Because the cell gets a structure. If the cytoskeleton is disturbed, the cell का structure is also changed. Cool? For example,
इसका क्लासिक एग्जांपल लेते हैं हम पीओपी, जैसे हम सीलिंग बनाते हैं, है ना, तो सीलिंग बनाने से पहले पीओपी की सीलिंग बनाते हैं, है ना, बहुत आर्टिस्टिक सीलिंग्स बनाते हैं। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आप एक पहले मोल्ड बनाते हो, राइट, आप एक स्कैफोल्ड बनाते हो, एक बैकग्राउंड बनाते हो, एक ढांचा बनाते हो, जिसके ऊपर आप पीओपी लगा लगा कर उसको पूरा स्ट्रक्चर देते हो, राइट। वेरी सिनोनिमसली, वेरी सिमिलरली यू हैव योर सेल जिसके अंदर साइटोस्केलेटन है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस साइटोस्केलेटन, the cell gets a particular shape, correct? तो चलो सेल को एक पर्टिकुलर शेप है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेल डिवीजन, तब ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर में सेल डिवाइड थोड़ी हो पाएगा, तब the cell has to show something called as fluidity, right? So when the cell has to divide, the cell divides by pinching, मतलब वो आप पढ़ोगे, correct? When the cell has to divide, मैं अगर रिजिड स्ट्रक्चर में हूं तो मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, correct? So the cytoskeleton breaks and the same cytoskeleton forms spindle fibers, correct? The same cytoskeleton forms, the same protein forms spindle fibers. तो spindle fiber form होंगे और cell divide होगा. Cool? When the cell divides, spindle fiber का काम हो गया. Now the spindle fiber again disintegrates and again the cytoskeleton is being formed. ठीक है? तो ये आपको साइटोस्केलेटन समझ गया, तो इसके सेल के अंदर साइटोस्केलेटन्स होंगे, ये साइटोस्केलेटन को अटैच करके क्लीन करके रखेगा केराटिन। वेरी क्लियर ऑन दैट, ठीक है? सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डेस्मोसोम्स। सो नेबरिंग सेल्स में कनेक्ट करेगा। हेमीडेस्मोसोम्स मतलब आधा डेस्मोसोम, करेक्ट? सो यहां पे आप देख रहे हो कि डेस्मोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है, इट इज प्रेजेंट हियर टुवर्ड्स दिस सेल एंड दैट सेल आल्सो, बट हेमीडेस्मोसोम्स एक ही जगह पे कनेक्ट करेगा, ठीक है? So desmosomes are associated with connection between two cells, whereas hemidesmosomes connects one cell and a non-cellular structure, ठीक है? मतलब epithelial cells को basement membrane के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? Hemidesmosomes. For example, this is how it appears, ठीक है? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल, and then you have something called as basement membrane. Cool? ठीक है बेटा, नेबरिंग सेल्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? डेस्मोसोम्स, ठीक है? हेमीडेस्मोसोम्स ऐसे होंगे, तो हेमीडेस्मोसोम्स विल अटैच टू अनदर प्रोटीन कॉल्ड एज लैमिनिन। आपको मैंने लैमिनिन प्रोटीन बताया था, लैमिनिन प्रोटीन बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में एक और प्रोटीन का लैमिनिन। सो हेमीडेस्मोसोम अटैचेस टू अ प्रोटीन कॉल्ड एज लैमिनिन, whereas here Keratin attaches to the cytoskeleton protein called as tubulin. ये सब आप सेल के यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ने वाले हो बेटा, ठीक है? तो adhering junctions आपको समझ गया। Where are adhering junctions seen? They are seen almost in all type of epithelial cells. Almost all type of epithelial cells. Along with this, adhering junction is also seen in the muscles, right? Adhering junctions is also seen in the muscles. ठीक है बेटा? All right. तो ये हो गया with respect to adhering junction. अब बात करते हैं tight junction. इसका sole purpose क्या है? What is the role of adhering? Sole purpose is to stick the cells together, right? Now something called as tight junctions. Tight junctions आपको नाम बता रहा है, tight junction का हम दूसरा नाम पढ़ेंगे. Tight junction is also called as zonula occludens. ठीक है? Occlusion refers to contusion, जिसे बोलते हैं ना, occlusion is an English word which means accumulation. बहुत ज्यादा जमा हो गया, बहुत ज्यादा ये हो गया, accumulate हो गया, right? So here there are certain proteins, ठीक है? अब ये बात करते हैं कि कैसा दिखेगा ये, ठीक है? One cell जिसके साथ एक और सेल, here I am only taking two cells, एक और सेल हम बना लेते हैं ऐसे नीचे, एक और सेल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है?
there is special type of proteins. ठीक है, टाइट जंक्शन प्रोटीन्स बोलेंगे इसको हम. There are no special names given in your syllabus. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा बाकी का मतलब बनाने को कंटाल आ रहा है. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो, है ना. सो ये तीन यहाँ ऐसे आपको जो दिख रहे हैं, they will be present throughout. But what is the role of tight junction? ये जो प्रोटीन है, it is absolutely not communicating. A hairy junction is only sticking. तो nutrients from this cell will get into this cell will get into this cell, etc., etc. But when you talk about tight junction, there is no particular transmission, there is no particular transfer of nutrients. बोलो कुछ भी चीज ट्रांसफर नहीं हो रही है. Cool. So tight junctions का रोल क्या है? Prevents leakage. So what is the role of tight junction? Prevents leaking. For example, if you talk about the inner layer, inner surface, epithelium, inner surface of your stomach. Now we know that stomach produces a very strong acid, that is HCl, approximately of pH 1.2 to 2.4. On an average, NCERT बोलता है कि 1.8 का pH है stomach के अंदर. 1.8 का pH is so strong. मतलब बेटा देखो 4 या 5 pH मतलब 3 और 4 on an average की pH की जो एसिड हमको मिलती है ना मार्केट में, जो टॉयलेट साफ करने वाली एसिड होती है, उसकी pH on an average 4 या 5 होती है. मतलब टेक्निकली इट इज वेरी स्ट्रांग. टू pH of pH 1 pH 2 जो है तो बहुत स्ट्रांगली एसिडिक है. योर स्टमक acid is so strong that it is so corrosive that अगर मैंने एक आयरन का टुकड़ा खा लिया तो वो आयरन will also get corroded. But ये होने के लिए मेरे को सिर्फ आयरन खाना पड़ेगा. If I am taking other food along with that, तो आयरन partially digest हो जाएगा, right? से मतलब it is very strong on that particular point, correct? So ऐसी strong अगर acid है, that should not leak, right? आप ये समझ सकते हो कि stomach की inner lining has a complete cover which is made up of simple columnar epithelium. और stomach के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एसिड प्रोड्यूस हो रही है. And if that acid leaks into the underlying tissue, epithelium के अंदर deeper layer में अगर acid leak out हो गया, it will damage the deeper cells because deeper cells are not used to all of these changes, right? So अगर leakage होती है तो it will damage the underlying tissue. So to prevent this particular condition, to prevent the damage to the underlying tissue, tight junction is being supplied or tight junction is being seen in the epithelium of the stomach. Cool. Similarly, और एक जगह पे है बेटा urinary bladder, है ना. अब मेरे को पता है कि urinary bladder का expand होता है. Urinary bladder में कौन सा टाइप का epithelium? Transitional epithelium, where lower cells are columnar and the topmost cells are globular in structure, and they change their shape, right? So when they change their shape, they extend. तो उनके बीच में भी there is tight junction because when you change the shape, there is a scope of gap which can be produced, correct? but अभी gap produce नहीं हो रही है, correct? अब जब ये expand हो रहा है urine के वजह से, so urine might also seep into the underlying muscles of the urinary bladder. तो वो seep ना हो, इसलिए यहाँ पे कौन सा टाइप का epithelium कौन सा टाइप का junction है बेटा? Tight junction or zonula occludens. So where do you see this? इसके examples लिखेंगे in the inner surface of the stomach, inner surface of stomach, Papi pate, inner surface of the urinary bladder, ठीक है बेटा? So that is all with respect to tight junctions. Cool. Moving ahead with gap junction. अब gap junction को बोलते हैं communicating junction. सीमेंटिंग और कम्युनिकेटिंग में फर्क है बेटा. सीमेंटिंग में सिर्फ वो चिपका के रख रहा है,
यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है. सो हियर you will have certain tunnel protein. यहाँ पे solid protein है, completely solid protein है, ठीक है. यहाँ पे connecting proteins है, वहां पे you will have hollow proteins. full tunnel protein, hollow proteins. So आप एक सेल है, दूसरा सेल है बेटा, तीसरा सेल है, ठीक है. इन दोनों के लिए सेल्स के बीच में देयर विल बी सर्टेन टनल प्रोटीन्स, और ये टनल प्रोटीन का हम नाम देंगे ठीक है. सिमिलरली ठीक है. तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस को बोल रहे हैं, इसी को ही हम बोलेंगे, एक और नाम देंगे बेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस. करेक्ट. सो कैन आई से इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है और दोनों के बीच में देयर इज अ गैप. फुल ये गैप से चीजें इधर से इधर मूव होगी या चीजें इधर से इधर मूव होगी. राइट. सो दीस गैप प्रोटीन्स जो है, ये प्रोटीन्स का नाम है, दीस प्रोटीन्स आर रेफर्ड टू एज कनेक्सॉन्स. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा. कनेक्सॉन्स जो कनेक्शन बनाते हैं. सो देयर आर दीज आर टनल प्रोटीन्स. अब ये क्यों चाहिए हमको? फास्ट कम्युनिकेशन के लिए. कूल. यहां से यहां पे तुरंत न्यूट्रिएंट्स कम्युनिकेट होंगे, आयंस कम्युनिकेट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कम्युनिकेट होंगे, कम्युनिकेट होंगे टू दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन पर्टिकुलर सेल टू अनदर सेल. राइट. सो वेयर डू यू रिक्वायर सच टाइप ऑफ gap junctions? Now these gap junctions are seen in electrical synapse. Synapse समझते हो बेटा? Synapse क्या है? It is a junction between two neurons. Brain के one neuron has a end, another neuron has a start. ये दोनों के बीच में हमने gap, ये दोनों के बीच में gap पड़ा था. That is chemical synapse. इधर से ये न्यूरॉन से पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया यहाँ तक, यहाँ से कुछ रिसेप्टर्स केमिकल निकलेंगे, वो केमिकल पोस्ट सिनेप्टिक नॉब पे बाइंड होंगे एंड अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल स्टार्ट. कूल. सो इट इज इलेक्ट्रिकल, देन केमिकल एंड देन अगेन इलेक्ट्रिकल. दिस इज इन केमिकल साइनैप्स. करेक्ट. बट अगर मैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात करूं, देयर इज नो गैप बिटवीन देम. रादर देन दिस न्यूरॉन एंड दिस न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू ईच अदर और द गैप इज वेरी 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 स्मॉल, लेस देन 0.2 नैनोमीटर्स. ठीक है. अगर गैप बहुत ज्यादा कम है तो इनके बीच में ऐसे गैप जंक्शंस होंगे. सो ऑन एन एवरेज ये आपको कैसे दिखेंगे? ऐसे. दिस इज वन न्यूरॉन, ये इसका साइनैप्स है. दिस इज अनदर न्यूरॉन, ये इसका साइनैप्स है और इन दोनों के बीच में देयर इज दी गैप जंक्शंस. कूल. अब ये क्यों होगा? इट इज टू फैसिलिटेट, मतलब सच टाइप ऑफ गैप जंक्शंस आर सीन इन द न्यूरॉन्स ऑफ योर ब्रेन. ठीक है. थ्रू आउट द बॉडी यू विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. ठीक है. बट ब्रेन के अंदर ही अंदर यू विल हैव माय मिस्टेक, उल्टा बोला मैंने. थ्रू आउट द बॉडी यू विल हैव मैक्सिमम केमिकल साइनैप्स, बट विद इन द ब्रेन यू विल हैव इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस जहां पे गैप जंक्शंस होंगे. ठीक है. तो न्यूरॉन्स में गैप जंक्शंस दिख रहे हैं हमको. इसके अलावा दे आर आल्सो सीन इन मसल्स. राइट. आई टोल्ड यू वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स दिस on the similar ground the other muscle will also contract. Right. So मसल्स में हम लोगों को दिखेंगे गैप जंक्शंस. कूल. इसके अलावा हमको स्पेशली गैप जंक्शंस दिखते हैं द इंटरकनेक्टेड डिस्क ऑफ कार्डियक मसल.
अब इंटरकनेक्टेड डिस्क क्या है, कार्डियक मसल क्या है, हम लोग मसल्स में पढ़ने वाले हैं। वी विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। सो फॉर नाउ इसके लोकेशन, इसके एग्जांपल्स लिख लो बेटा। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? न्यूरॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, न्यूरॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। उसके बाद इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क्स ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो सेल जंक्शन तो ऐसा ही है, सेल जंक्शन तो तीन ही है बेटा। एक और टाइप का एसोसिएशन है, दिस इज अ सेल्यूलर एसोसिएशन, ठीक है। सेल जंक्शन हमने सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनाया है। यहाँ पे भी प्रोटीन है, यहाँ पे भी देयर इज प्रोटीन, करेक्ट। देयर आल्सो यू हैव प्रोटीन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटीन क्या एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होगा? बिल्कुल होगा। द अदर टाइप, इसीलिए हम इसको सेल जंक्शन में नहीं पढ़ेंगे, हम सेल एसोसिएशन में पढ़ेंगे। Where one cell has a anatomical structure, एक सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है such that it forms an association with another cell. Here it is purely the protein, there it is the modification of a cell. That is the major difference. So उसमें हम एक ही particular category पढ़ेंगे, that is called as interdigitation. इंटरडिजिटेशंस, इंटर का मतलब क्या है? बिटवीन, है ना। डिजिट्स का मतलब क्या है बेटा? इंटर रेफर्स टू बिटवीन। डिजिट्स का मतलब क्या है? डिजिट्स का मतलब है फिंगर्स, राइट। इंटरडिजिटेशन क्या है? ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, मतलब एक सेल दूसरे सेल के साथ ऐसे फिंगर लाइक अपैरेटस बनाई गई, ऐसे पकड़ के रखती है, राइट। सो these are seen in podocytes of Bowman's capsule. Bowman's capsule, ठीक है। Bowman's capsule, देखो नेफ्रॉन अगर मैं बात करूंगा तो नेफ्रॉन एक कप के जैसे है ना। Bowman's capsule is just like a cup. ये कप के अंदर there is a tough capillaries, TUFT. There is a tuft. Glomerulus is a tough capillaries. Tuft का मतलब क्या है? Tuft का मतलब है untangled mass. अब glomerulus को बहुत ही अच्छी तरीके से अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है, हाँ चलो एक एग्जांपल है। आपने ये देखा होगा कि कुछ औरतें होती है ना, जैसे ही शाम हो जाता है what do they do? वैसे बाहर घर के उम्बरटा पे बैठते हैं और मस्त बातें करते करते 4-5 इधर उधर की चुगलियां करते करते, है ना। आओ बहन चुगली करे, तो इधर उधर की दे प्ले दिस गेम, आओ बहन चुगली करे। चुगली करते 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 वो बाल बनाती है, करेक्ट। और बाल बनाते बनाते उनके कंघी में इतना सारा बालों का गुच्छा जमा हो जाता है, राइट। बट दीस फीमेल्स आर वेरी स्मार्ट, करेक्ट। उन्होंने ऐसे ही बाल अगर निकालकर अगर ऐसे ही बाहर फेंक दिया, व्हाट विल हैपन? बाय द विंड और बाय द एयर वो सेम पूरा का पूरा गुच्छा क्या आएगा? वापस घर के अंदर आ जाएगा, करेक्ट। सो दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करती है? तो कंघी में से बाल निकाल लेती है एंड दे सिट, दे कीप इट इन देयर हैंड एंड दे कीप ऑन रोलिंग दिस, है ना। ऐसे रोल करते करते एक हाथ दो चुगली और कर लेती है, करेक्ट। तो ऐसे कि दे कीप ऑन रोलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड व्हाट डू दे ऑब्टेन आफ्टर दैट, है ना। दे ऑब्टेन अ अनटैंगल्ड मास ऑफ हेयर, करेक्ट। जब पहले था तो हर एक हेयर स्ट्रैंड को सेपरेट कर सकता था, बट नाउ द कंडीशन इज बिकम सो बैड दैट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू गेट सेपरेट दो स्ट्रैंड। तो वो जो बालों का जो गुच्छा दिखता है, इट्स एन अनटैंगल्ड मास, दैट इज अ टफ्ट। तो आपका ग्लोमेरुलस एग्जैक्टली ऐसा है, ठीक है। सो बोमैन्स कैप्सूल है, उसके अंदर एक बालों का टफ्ट के जैसे कैपिलरी है, करेक्ट। क्यों करती है ऐसे फीमेल्स, क्यों करती है लेडीज ऐसे क्यों करती है? बिकॉज़ दे नो if they tangle that the hair will get develop certain amount of mass and because of that mass it will settle down, correct। और अब हमारे घर पे नहीं आएगा, घर गंदा नहीं होना चाहिए, आसपास गंदा हो जाएगा तो भी चलेगा। that is the poor mentality which we have anyways।
है ना। देखो हम उनके बारे में अब बात नहीं करते ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो आप ये समझते हो कि वुमेन्स कैप्सूल के अंदर देयर इज अ टफ कैपिलरीज, कूल। सो दैट टफ कैपिलरीज को पकड़ के रखना पड़ेगा ना। तो ऐसा एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है दी पोडोसाइट्स, एक ऐसा फिंगर लाइक फुट लाइक प्रोजेक्शन, लंबे लंबे फुट लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। सो अगर मैं पोडोसाइट की डायग्राम बनाने की कोशिश करूं यहां पे, सो पोडोसाइट लुक्स दिस वे। ठीक है, तो ये जो फुट लाइक प्रोजेक्शंस है दे आर कॉल्ड एज पेडिसल्स। पढ़ने वाले हैं हम लोग ये सब व्हेन वी डू द चैप्टर कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये फुट लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे बेटा, ये बहुत सारे ऐसे फुट लाइक प्रोजेक्शंस है व्हिच आर होल्डिंग द ग्लोमेरुलस। ठीक है, जैसे ग्लोमेरुलस में इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि दिस इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखने के लिए these finger like projections they help, is that right? So that is called as interdigitation, not very important from the exam point of view, again I'm telling you to you. Cool. So that is all with respect to cell junctions. ठीक है, फटाफट 2 मिनट है, इधर आप वीडियो पॉज कर लो और फिर कॉपी कर लो, वरना आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप कॉपी कर सकते हो फ्रॉम द बोर्ड। कूल। ठीक है बेटा, तो आई एम थिंकिंग ऑफ नॉट स्टार्टिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन दिस पर्टिकुलर क्लास बिकॉज हो गया है एक एक्सटेंडेड 57 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ फ्रेश टॉपिक ऑल टुगेदर। ठीक है, वी विल जस्ट टॉक अबाउट ग्लैंडुलर एपिथेलियम, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज अ फ्रेश टॉपिक। कूल। सो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू सेल जंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं कुछ। ठीक है, स्पेसिफिकली आई टोल्ड यू at certain areas, देखो एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया था, यही ब्यूटीफुल क्वेश्चन को भी अपन डिस्कस करते हैं, and then we'll try to correlate कि डिफरेंस क्यों आया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है बेटा, I will have to write that question, नहीं छोड़ो, क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है बेटा, बेसिकली these are specialized epithelial cells, modifications of the epithelial cells which purely have a role of secretion। मतलब उनका घूम फिरकर काम क्या है, सिर्फ सिक्रीशन करना, सिर्फ कोई चीज को सिक्रीट करना। करेक्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट सिक्रीशन, ऐसा क्या हुआ होगा, करेक्ट है तो सेम एपिथेलियल टिश्यू, कि ऐसा क्या हुआ होगा कि these epithelial tissue at certain places they don't secrete anything, at certain places they are only doing secretion। जब ये मॉडिफिकेशन आ जाती है तो सारे सेम टाइप के एपिथेलियल सेल्स, but why do epithelial cells they function differently at a different area? For example, if you talk about skin cells, सारे skin cells sweat नहीं produce करते, there are specific glands called as sweat gland, correct? तो throughout the body अगर मैं ये बोलूंगा मेरे nails के अंदर से पसीना आ रहा है, बिल्कुल बकवास है ना। But if I say my armpits are centers of sweat, बिल्कुल सही है, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट योर मुस्टैच रीजन, है ना, ऐसे कुछ स्पेशल एरियाज हैं जहां पे मैक्सिमम स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है। सो थ्रू आउट द बॉडी हर एक सेल स्वेट प्रोड्यूस नहीं करता, देयर आर सर्टेन पिट्स, है ना, ऐसे छोटे-छोटे पिट्स है जिसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स है, स्पेसिफिकली मॉडिफाइड सेल्स है। ठीक है, अब ये स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, तो हुआ क्या, मतलब सिर्फ ग्लैंड ही, स्वेट ग्लैंड के सेल्स में ऐसा क्या हुआ कि वो स्वेट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद द अदर सेल्स, व्हाई आर द अदर सेल्स नॉट बिहेविंग, वो क्यों भीड़ के जैसे काम नहीं कर रहे। तो इसका बोलने का मतलब, इसका एसोसिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू जीन्स, राइट। सो एपिथेलियल सेल्स सही है, सब में सेम टाइप के जीन्स होंगे, सब में सेम टाइप सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। ऑल दी सेल्स आर अलाइक विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, दे आर सिमिलर, each and every cell of your body will have same type of genes, same chromosomes, same number of chromosomes, correct, but some genes are active at certain areas, some genes are inactive at certain areas. For example, अगर मैं sweat glands की बात करूं तो sweat glands में the genes for producing sweat is active, whereas same sweat gland, same particular epithelium जब hair के पास hair scalp बनाता है, so there the genes for keratin is active, cool. And when you talk about the other skin cell, there the genes are completely inactive. तो बोलने का मतलब क्या है, these are similar cells but due to certain activation and inactivation of the genes they function differently, right. So at certain areas, at certain in certain glands, the genes for certain production or genes for certain attribute or any type of secretion is active, whereas in other cells it is inactive. जैसे मैं अगर थायराइड फॉलिकल्स की बात करूं, वहां पे they are associated, the genes for thyroxine is active. सेम टाइप के एपिथेलियम मैं जर्माइनल टेस्टिस एंड ओवरी में देखूंगा, टेस्टिस एंड ओवरी में दोस जीन्स, टेस्टिस एंड ओवरी के सेल्स कभी थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, करेक्ट, बट वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं, टेस्टिस कैन प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज, सेल्स ऑफ द ओवरीज। अब यहां पे वो जीन्स एक्टिव है, राइट, वेयरएज थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन की जीन्स एक्टिव है, बट दोनों जीन्स, both of the genes, can I say thyroid gland will not have any gene for testosterone production? ये तो बिल्कुल गलत होगा ना। थायराइड ग्लैंड में, थायराइड सेल्स में, cells of the thyroid follicles will have the genes for testosterone, will have the genes for estrogen, but difference ये होगा बेटा कि वहां पे वो genes active नहीं है, so ultimately the product is not being produced, correct, whereas similarly on the similar context टेस्टिस में भी थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स होंगे, but they are not active. It is based on the activation and inactivation of the genes with respect to your body's requirement. I always keep on telling you, बार-बार मैं ये चीज बोलता हूँ बेटा, your human body is so finely, so sophisticatedly made, correct? So that is why बार-बार सेंटेंस बोलने का रीजन ये है, अल्टीमेट कंक्लूजन ये है that we should respect our body, we should love our body, and we should be curious about knowing our body, right? If we have absolute utmost knowledge with respect to our body, हमारी understanding with respect to your body and taking care of the body will comparatively increase, है ना। एक बहुत ही अच्छा वीडियो देखा था मैंने, I guess I have seen it in some WhatsApp status, and the video basically talks about that your body is the only property which you have, right? You are born with that property and you will die with that property. बाकी कुछ भी नहीं, संसार में सब कुछ नश्वर है, even your body is नश्वर, right? देखो चालू हो गया फ्री का ज्ञान, right? तो but when you talk about your body, right? एक आपकी प्रॉपर्टी है, whole and soul property which you have is your body, right? And हम बॉडी में के अंदर कितनी सारी यूजफुल, कितनी सारी यूजलेस, कितनी सारी हार्मफुल चीजें डालते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली आपकी बॉडी फिर भी आपको सपोर्ट करती है, योर हार्ट इज स्टिल सपोर्टिंग, विदाउट हार्ट यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन, योर ब्रेन इज स्टिल सपोर्टिंग यू। बायोलॉजी कैन नॉट आंसर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाई ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, है ना। बायोलॉजी अल्टीमेटली हम ये इसको आंसर नहीं कर सकते। इफ द हार्ट इज बीटिंग, आई नो द हार्ट इज बीटिंग टू सप्लाई ब्लड to the different parts of the body, but ये पर्पस में हार्ट को क्या मिल रहा है, what is the cells of the heart receiving, right? So why is this particular thing happening? ये क्वेश्चन को बायो आंसर नहीं कर सकता, and so that is what we will have to understand. So बहुत ब्यूटीफुली उन लोगों ने वीडियो में बताया था कि हम कितनी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं बॉडी के अंदर, but still your body is trying to
बॉडी होती है। देखो हमेशा याद रखना, आपकी बॉडी जिंदा रहना चाहती है। इवन इफ यू टॉक अबाउट पर्सन हु इज कमिटिंग सुसाइड, राइट? अगर फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं ना, जनरली बोलने के टाइम बोलते हैं, आई नो आई विल बी साउंडिंग एब्सोल्युटली रूथलेस, बट वही है, अगर सुसाइड करना है ना, तो तीसरे माले से मत कूदना, ठीक है? कूदना ही है ना, तो गो एंड लुक आउट फॉर अ टावर, कम से कम 12 माले की बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो एटलीस्ट यू विल मेक श्योर दैट यू विल डाई, है ना? तीसरे माले से गिर गए, है ना, हड्डी पसली टूट गई, है ना, तो अब ना ही घर के ना घाट के, राइट? So when we say this, your body is trying to fight. अब देखो कोरोना का इतना सारा चीज चल रहा है, राइट? एंड कोरोना इज अफेक्टिंग डिफरेंटली नॉन डिफरेंट पीपल। एक पर्टिकुलर फैक्ट आया था दैट कोरोना इज नॉट अफेक्टिंग द न्यूबॉर्न, बट वो भी काउंटर हो गया था बेटा कि विदिन 40 मिनट्स a newborn baby which was born in China was infected by corona, correct? अब बच्चों को कोरोना क्यों अफेक्ट नहीं करता? बिकॉज़ देयर इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, है ना? ये एक फैक्ट है बेटा, ये एक फैक्ट है। a newborn has more number of WBCs as that of RBCs, correct? जैसे हमारे बॉडी में RBCs 5 to 6 million per 100 ml है, ठीक है? whereas WBC is only 10,000 per 100 ml, correct? but newborn बच्चे में the ratio is different. newborn babies will have large number of WBCs as that of RBCs, ठीक है? उससे RBC से ज्यादा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आपके कंडीशन में मिलियन कहां और 10,000 कहां बेटा, है ना? 10 लाख approximately 50 to 60 lakhs in 100 ml of cell, और 50 to 60 और 10 में तो कंपैरिजन ही नहीं है, राइट? सो हियर एडिक्वेटली रिक्वायरमेंट है। अब न्यूबॉर्न बच्चे की देखो अगेन स्मार्ट, we know inside the mother's womb the baby was protected by microorganisms, the baby was protected by all sort of infections, right? but if the mother acquires any type of infection, that infection can get into the child also, right? तो mother के womb के अंदर it was protected, correct? let's assume कि mother को कोई infection नहीं है, right? it is protected. जैसे वो environment में आ जाता है, now it is surrounded by so many air pathogens, so many pathogens with respect to the surface and environment, correct? और बच्चा अगर compromised immune system से पैदा हो गया, मतलब अगर बच्चे की immune system weak रही, तो the baby will not be able to survive. Immediately पहला shot, पहला injection हम BCG देते हैं vaccinations का, क्यों? Because the chances of getting tuberculosis is very high in the newborn babies. So उनकी इम्यूनिटी एक्टिव होती है। क्यों बोलते हैं हम 5 साल तक पोलियो के डोजेस पिलाने पड़ते हैं 5 साल तक? बिकॉज़ 5 इयर्स तक आपकी इम्यून सिस्टम सॉरी 5 साल तक आपकी इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली डेवलप्ड रहती है। सॉरी अबाउट दैट। सो बोलने का मतलब ये है बेटा कि you have to understand that immune system plays a major role. हम ये बोलते हैं कि छोटे बच्चों की immune system बहुत strong होती है, whereas old age लोगों की immune system is comparatively weaker. देखो now अगर मैं इसको philosophical point of view से बात करूं कि newborn baby has to live the entire life, but old age वाले जो लोग हैं they have completed their entire life, मतलब कि circle of life is almost completed, they are on the verge, right? So nature जानता है कि वो unproductive है, ये productive है, right? So इसीलिए उनकी immune system is comparatively compromised and they die because the death of the old people is comparatively more. Is that right? एक चीज में हमेशा ये मेरा point of view है, I don't know if how much people will agree on this particular point. एक चीज जो सबसे conscious है, हम conscious है, बिल्कुल सही है बेटा। One thing which is conscious in this particular earth is nature, right? इसके बारे में बहुत ब्यूटीफुल एक कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट नॉट नाउ। आई विल बी डिस्कसिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर कॉल्ड एज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब जैसे ये चैप्टर का नाम लेता हूँ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, बहुत सारे बच्चों की शक्ल सड़ जाती है, मुंह सड़ जाता है, कितना गंदा चैप्टर, कितना बोरिंग चैप्टर है, वही डार्विनिज्म, वही डमार्किज्म, अरे बोलते बोलते मुंह सड़ा लेते हैं। But trust me on this particular point, you need to have a well equipped knowledge, right? और वो complete वो चैप्टर को
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट टीचर की होती है, राइट? बिकॉज आई नो दैट चैप्टर टर्न्स आउट टू बी बोरिंग, एब्सोल्युटली बोरिंग। इट इज, मेरे को बोलना पड़ता है क्लास में कि ऐसे मत बैठो, बिकॉज जैसे कोई ऐसे बैठते धीरे धीरे दिस हैंड स्लिप्स ऑफ, है ना, एंड वो सो जाते हैं। सो एवोल्यूशन, origin and evolution is of life is a chapter which a lot of people turn out to be bored, but the complete responsibility of the teacher है, right? अगर उस वो टीचर की preparation with respect to that chapter is very good and the teacher is able to hold the attention of the students, then the chapter absolutely turns out to be interesting. वो chapter बहुत interesting है, right? It has to be taught in a right way. Cool. So ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। For now आज का ज्ञान यहाँ पे समाप्त होता है। Thank you so much for having me. Take care of yourself. Enjoy your day. Take care. Bye bye.